Hello friends, welcome again. In the previous lectures we were discussing about electric field, intensity of electric field due to a point charge or group of charges or distribution of charges. I hope you understand well and enjoying the problems also. But we are still confusing about electric field. Electric field is still elusive for us because of its invisible nature. That is, we cannot see the electric field and we cannot feel the electric field. To overcome this problem, Faraday introduced another concept of electric field lines. It is completely imaginary, intuitive and non-mathematical concept, but it can picturize the electric field, it can visualize the electric field with the help of some lines, and these lines are known as electric field lines. First of all, we will define electric field lines and then some interesting properties of these lines. The electric field lines are completely imaginary, hypothetical, but it can explain beautifully the concept of electric field which is real. And finally, we will draw some field line patterns of single point charge, positive charge, negative charge, two similar charges, two opposite charges, electric dipole, etc. In brief, इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल होता है, आप उसको देख नहीं सकते, जो चीज दिखाई नहीं देती उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसलिए फैराडे ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया फील्ड लाइंस का कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ करो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरेक्टराइज करे डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. लेट अस डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. An electric line of force is an imaginary line or curve drawn in electric field such a way that the tangent at any point of this line points in the direction of net electric field at that point. Let it is electric field line. This line is drawn in electric field such a way that tangent drawn at any point points in the direction of electric field, net electric field at that point. Then this line is known as electric field line. This black line is known as electric field line. It is because the tangent at any point is pointing in the direction of net electric field at these points. So this line is electric field line. इसका मतलब ये है कि मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आप एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन के बहुत से पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो. अगर वो सारे टेंजेंट्स इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तो इस लाइन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो ये कर्व की जगह स्ट्रेट होगी. तो स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक डायरेक्शन होती है, टेंजेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. पर अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हो तो ये लाइन कर्व हो सकती है. उस सिचुएशन में आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है. Now, properties of electric lines of force. Number one, an electric line of force originates from positive charge and terminates at negative charge. Suppose that एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये लाइन प्लस से ओरिजिनेट होगी और माइनस पे टर्मिनेट होगी. अगर ये चार्जेस सिंगल पॉइंट चार्जेस हो, जैसे ये चार्ज आपका सिंगल है, इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर और अप टू इंफिनिटी तक जाएगी. और इसी तरीके से अगर ये चार्ज नेगेटिव है, सिंगल पॉइंट चार्ज है नेगेटिव, तो ये लाइन इंफिनिटी से आएगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी. इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर ए चार्ज Q greater than 0. Q greater than 0 means it is a single positive charge, जो इस डायग्राम में शो करना है. तो इस सिचुएशन में आप ये ड्रॉ करेंगे. And also draw electric lines of force a charge Q less than 0. And less than 0 means it is negative charge, negative single point charge. तो इस सिचुएशन में आपको ये ड्रॉ करना है. For Q greater than 0, this diagram, and for Q less than 0, this diagram. It is first property of electric line of force. Now, second property of electric field line. According to first property, these lines originates from positive and terminates at the negative charge. And property number 2 is
the tangent drawn at any point on these electric field lines gives the direction of electric field at that point. Find out the direction of electric field at this point P. Then tangent at P gives the direction of electric field. So this direction is, it is tangent and it gives the direction of electric field. At this point, this tangent gives direction of electric field E at another point Q. बीच में आप एक लाइन देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इस सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट की जरूरत नहीं है. तो ये लाइन आपसे ये पूछे कि भी यहाँ पे ये पॉइंट टी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो इस सिचुएशन में ये जो डायरेक्शन है खुद की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. दैट इज टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ field line gives the direction of electric field at that point. And if field line is a straight line, then it is already a direction. Third property of electric field line. Electric field line never forms a closed loop. इसका मतलब ये है कि ये किसी भी चार्ज से ओरिजिनेट होके और दोबारा उसी चार्ज पे टर्मिनेट नहीं हो सकती. यानी यहां से निकल के और ये इस टाइप से एक ही चार्ज पे टर्मिनेट नहीं हो सकती. इसका रीजन ये है कि देखिए प्लस से तो ओरिजिनेट हो सकती है, प्लस में टर्मिनेट नहीं हो सकती. इसका मतलब इसका कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा. एंड इट इज ड्यू टू द कंजर्वेटिव नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड. इन ब्रीफ, electric field lines never forms a closed loop and it is due to the property of conservative nature of electric field. Fourth property, two electric field lines never intersect each other. यानी दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं. ये एक फील्ड लाइन है और ये एक फील्ड लाइन है. ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इसका कारण ये है कि अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे दो टेंजेंट बन सकते हैं. इन लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है. तो इस सिचुएशन अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे. These two tangents gives the two directions of electric field at the same point, which is impossible. एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होगी. एक पॉइंट पे तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होगी. इसका मतलब ये है कि दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो इसमें क्वेश्चन आता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. व्हाई? तो इसका आंसर होगा इट इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल. Property number 5, the relative closeness of field lines gives an idea about the strength of electric field. Crowded the line in a region, stronger the electric field. Rarer the line around a point means weaker the field. यानी फील्ड लाइंस के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो फील्ड स्ट्रेंथ का आपको आइडिया देगा. जिस पॉइंट के आसपास लाइनें थोड़ी सी क्राउडेड है, नजदीक नजदीक है, वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. और जहां ये फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर है वहां फील्ड जो है वो वीक होगा. आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं. सपोज दैट ये पॉइंट चार्ज Q है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसकी ये फील्ड लाइंस है. नाउ कंसीडर टू पॉइंट्स A and B. You can see these two lines are crowded around A, but these lines are far apart around B. It means the strength of electric field at A is greater than the strength of electric field at B. यानी जिस पॉइंट के आसपास लाइंस पास पास में होंगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जिस पॉइंट के आसपास जो फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा. इन ब्रीफ, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्राउडेड द लाइंस अराउंड ए पॉइंट, स्ट्रॉन्गर द फील्ड, एंड फार अपार्ट अराउंड ए पॉइंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक एट दैट पॉइंट. Now, property number 6. This property gives the magnitude of electric field in terms of the number of field lines. According to this property,
the number of electric field lines passing through unit area of a surface perpendicularly is equal to the strength of electric field, intensity of electric field at that point. For example, it is a surface of area A and these are field lines passing perpendicularly through this surface. That is, these lines makes an angle of 90 degree with the surface. यानी एक सरफेस है, इसमें से ये फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर निकल रही है यहाँ से. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और फील्ड लाइंस है और ये फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है. मान लो ये एरिया है 4 मीटर स्क्वायर. 4 मीटर स्क्वायर से 100 लाइंस पास हो रही है. That 100 lines are passing perpendicularly through the area of 4 meter square. Then number of lines passing through unit area 1 meter square. 4 meter square number of lines 100. Then 1 meter square 25. So this 25 is the magnitude of electric field, intensity of electric field at that point. In brief, the number of field lines passing through unit area of a surface placed perpendicular to the field lines is equal to the strength of electric field capital E. Property number 7, that is a charge of unit strength give rise to 1 by epsilon naught field lines in free space. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक चार्ज है, इसकी स्ट्रेंथ है +1. तो इससे जो टोटल लाइंस ओरिजिनेट होगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वो लाइंस होगी 1/epsilon naught. और अगर ये चार्ज -1 हो तो इसमें अंदर आने वाली जो लाइंस है उनकी जो नंबर, उनकी संख्या है 1/epsilon naught होगी. That is, charge of unit strength originates 1/epsilon0 field lines in free space, or if strength of charge is -1, then 1/epsilon0 field lines terminates to this charge. If magnitude of this charge is Q, that is +Q, then total number of lines originated from this positive charge will be Q times of 1/epsilon0. क्योंकि यूनिट चार्ज दे रहा 1/epsilon0, तो Q चार्ज होगी Q टाइम्स ऑफ epsilon0. ये लाइंस ओरिजिनेट होगी. पर ये चार्ज अगर नेगेटिव हो -Q, तो इसमें कितनी लाइंस टर्मिनेट होगी? तो यूनिट चार्ज में कितनी अंदर आ रही है? ये लाइंस 1/epsilon0 इनकमिंग. और अगर इसकी स्ट्रेंथ हो Q, इसकी जो लाइंस होगी वो Q टाइम्स होगी. तो Q चार्ज से इतनी लाइंस ओरिजिनेट होती है, -Q पर इतनी लाइंस टर्मिनेट होती है. एंड इट इज 7th प्रॉपर्टी. ए चार्ज ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ gives rise to 1/epsilon0 lines in free space, and if charge is negative, that is -1, then 1/epsilon0 lines terminates on this charge in free space. Property number 8, electric field lines do not pass through a conductor. It is because the electric field inside a conductor is 0. इस प्रॉपर्टी को अपने आगे स्टडी करेंगे. Property number 9, electric field lines can pass through a dielectric or insulator. Property number 10, electric field lines are always perpendicular to a charged conductor. Suppose that it is a conductor and it is charged. Then electric field will be always perpendicular to the surface of the conductor. यानी ये कंडक्टर है और ये चार्ज्ड है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी आपकी. Property number 11, the electric field lines contracts or shrinks along the length, and this property explains the force of attraction between two unlike charges. यानी दो अगर अपोजिट चार्जेस है तो उसके बीच में
ये जो लाइंस है ये श्रिंक होती है, यानी लेंथ वाइज श्रिंक होगी, तो ये अगर सिकुड़ेगी तो लाइन छोटी होगी तो दोनों चार्जेस क्लोज आएंगे, और ये प्रॉपर्टी दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है। Property number 12, the electric field lines exerts lateral pressure, sideways pressure on each other, and this property explains the repulsion between two like charges. जैसे मान लो ये दो चार्जेस पॉजिटिव है, तो ये इसकी फील्ड लाइंस पैटर्न इस टाइप से होगा, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती। तो ये लाइंस एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर डालेगी साइड में, परपेंडिकुलर साइड में, तो लैटरल प्रेशर से ये पीछे हटेगी तो चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। तो दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स द रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। लास्ट में दो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1.7 पार्ट ए पेज नंबर 46, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? यानी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बीच में ब्रेक हो सकता है या ये लाइन कंटिन्यूअस होती है? तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो अब इस चार्ज को देखिए, इस चार्ज से अपने जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। अब अपने ये कहें कि ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, इनके बीच में एक फील्ड, एक रीजन है, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस हो सकती है? तो हम ये देखेंगे कि क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो एक्चुअल में इसमें बीच में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं सी, तो सी है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस अगर फाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड तो जीरो सिर्फ कब होगा? जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो आगे इंफिनिटी से आगे कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगी, इंफिनिटी से पहले फील्ड होगा, और फील्ड होगा तो वहां लाइन डेफिनेटली होगी, क्योंकि लाइंस एक्चुअल में किसका रिप्रेजेंटेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका मतलब ये है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे लाइंस डेफिनेटली होगी, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद डिस्टेंस। तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड बिकम्स जीरो ओनली एट इंफिनिटी। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड लाइंस हम वहीं ड्रॉ करते हैं जहां फील्ड होता है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में फील्ड है तो यहाँ पे लाइंस होगी, ये डिसकंटिन्यू नहीं हो सकती, इसीलिए ये लाइंस है वो डिसकंटिन्यूअस कर्व नहीं है। अब आपको इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मैं आपको बताता हूं। आपने ये सिमिलर चार्जेस की आपने फील्ड पैटर्न देखा इसमें कि ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिड पॉइंट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम दी चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा इस तरफ के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज the electric field intensity due to these two charges are equal and opposite, because the distance between charge and point of observations are equal. So intensity at this point O will be equal and opposite and cancel out each other, so net electric field is zero. तो आप बताइए इसमें कि जब O पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी? तो उसको अपने देखते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसका।
यहां से अपने एक लाइन ड्रॉ करें तो पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट होती है और वो इंफिनिटी भी जाके टर्मिनेट होनी चाहिए। तो क्या ये लाइन नंबर 1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? तो हम कहेंगे लाइन नंबर जो 1 है वो इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है इंफिनिटी पे। तो क्या ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है? ये डिस्टेंस तो इनफाइनाइट नहीं है, ये तो फाइनाइट डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस अगर फाइनाइट है तो इस पॉइंट के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, ओ पे फील्ड लाइन नहीं जाएगी। तो देखिए ये लाइन स्टार्ट तो हो गई, लाइन नंबर 1, ये ब्लैक लाइन स्टार्ट तो हो गई है, पर ये इंफिनिटी से पहले टर्मिनेट होगी। इसका मतलब ये है कि ये लाइन नंबर 1 और अगर अपने इस तरफ से देखें तो ये लाइन नंबर 2, ये दोनों लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, पर ये इंफिनिटी से पहले फाइनाइट डिस्टेंस टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रही। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो इन लाइंस को हम बोलेंगे रॉग लाइंस, रॉग फील्ड लाइंस। तो इन दोनों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मानेंगे। आपको इसमें कॉन्ट्राडिक्शन लग सकता है इसमें कि ये लाइन स्टार्ट होती है पर ये इंफिनिटी से पहले टर्मिनेट होगी। तो कैसे टर्मिनेट होगी? इंफिनिटी से पहले तो इसमें ब्रेक आना ही नहीं चाहिए, जबकि ओ पे ब्रेक आ गया। लाइन नंबर 1 ओ पे आने के बाद टर्मिनेट होगी, ओ का डिस्टेंस फाइनाइट है, तो फिर टर्मिनेट कैसे होगी? तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, इसको हम रॉग लाइंस बोलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.26 पेज नंबर 48। इसमें कुछ फील्ड लाइन पैटर्न्स है और आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अब देखिए ये कंडक्टर है वो चार्ज है, तो ये जो रेड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या ये लाइन सही है या नहीं है ये आपको बताना है। तो आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 में हमने ये सीखा था कि जो फील्ड लाइंस है वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन जो है वो 90 डिग्री पे नहीं है, ये एंगल लेस देन 90 है। आप किसी भी लाइन को देखेंगे तो ये एंगल्स है वो 90 डिग्री के नहीं है। इसका मतलब ये फील्ड पैटर्न जो है वो रॉन्ग है, ये इम्पॉसिबल है। पार्ट बी में आप देखिए ये चार्जेस हैं प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। प्लस से बाहर निकलनी चाहिए और माइनस में अंदर आनी चाहिए। तो आप देखिए यहां ये पैटर्न आपको सही दिख रहा है कि ये लाइंस जो है वो बाहर आ रही है, तो ये यहां तक ठीक है। और माइनस में एंटर होनी चाहिए, चार्ज माइनस है, तो ये एंट्री भी सही है, यानी यहाँ पे ये फील्ड लाइंस यहाँ भी सही है ये। पर आप यहां देखिए ये पैटर्न रॉन्ग हो गया, क्योंकि नेगेटिव से बाहर निकलती हुई दिख रही है, नेगेटिव से ओरिजिनेट्स हो रही है। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब आप यहां देखिए इसमें ये प्लस में टर्मिनेट हो रही है, ये लाइंस प्लस के अंदर आ रही है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यहां ये सही है, प्लस से ओरिजिनेट होगी, पर यहां देखिए प्लस से फिर टर्मिनेट होती थी, यहां पे भी गलत है ये, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। प्लस से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ये सही है, पर ये फिर प्लस पे टर्मिनेट होगी, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों लाइंस ठीक है, इसका मतलब ये फील्ड पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है। पार्ट सी में आप देखिए दो चार्जेस है वो दोनों पॉजिटिव है, सिमिलर चार्जेस है, और सिमिलर चार्जेस के लिए लाइंस जो है वो आउटवर्ड्स होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस आउटवर्ड्स होती है, और बीच में इस रीजन में कोई लाइन नहीं है। तो ये अपने पैटर्न पहले देख चुके हैं, ये दो इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस का फील्ड पैटर्न है, इसकी लाइंस की डायरेक्शंस सही है, ये करेक्ट है, ये फील्ड पैटर्न पॉसिबल है। इस डायग्राम में देखिए क्या ये फील्ड पैटर्न पॉसिबल है? तो देखिए ये फील्ड पैटर्न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी थर्ड ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब देखिए ये लाइंस जो है वो इस रीजन में यहाँ पे इस चार्ज की लाइंस अब आपस में इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, पर इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये फील्ड पैटर्न है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइंस अब इंटरसेक्ट कर रही है। प्रॉब्लम का पार्ट ई देखिए, इसमें ये दो चार्ज बॉडी थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और ये फील्ड लाइंस है। तो आप इसमें देखिए ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, और नेगेटिव को अगर देखें तो ये टर्मिनेट हो रही है। तो यहां तक तो ठीक है, पर आप इन दो लाइंस को देखिए, क्या ये पॉसिबल है? तो फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि दे नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में नहीं होती, क्योंकि फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होता है। तो ये दोनों जो लाइंस है वो क्लोज लूप शो कर रखे, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है, यानी ये फील्ड पैटर्न है वो पॉसिबल नहीं है। फील्ड लाइंस में एक
मिसकंसेप्शन है वो ये है, कई बार ये डेफिनेशन देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? तो ये एक सिचुएशन में सही है, दूसरे में सही नहीं है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि फील्ड लाइंस के अलोंग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखिए इसमें कि अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट ये चार्ज है और ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड है यहां पे, अगर एक टेस्ट चार्ज रख दें +1 तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और ये लाइन यहां तक आएगी, यहां पे इंफिनिटी है। तो आप +1 कहीं भी रखें वो अलोंग द फील्ड लाइन ही मूव करेगा। तो आप इसके लिए बोल सकते हैं फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के आसपास हम कहीं भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 रख दें तो जिस पाथ पे जाएगा उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो एक सिंगल चार्ज के लिए हम बोल सकते हैं कि इस पाथ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा, पर ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस केस में ठीक है, इस रीजन में जो फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट होगी और एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस लाइन के अलोंग मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और वही पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री होगी। यानी +1 की ट्रेजेक्ट्री जो है उसी को आप फील्ड लाइन बोल सकते हैं। पर अगर चार्जेस 2 हों, इस सिचुएशन में फील्ड लाइंस कर्व्ड होगी। तो क्या इस सिचुएशन में मैं +1 यहां रख दूं तो क्या +1 इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा? तो हम कहेंगे नहीं करेगा। ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो फील्ड की डायरेक्शन है, वो चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन है। मान लो इस पोजीशन पे फील्ड आपका है E वेक्टर, तो इस चार्ज पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो QE वेक्टर होगी। अगर ये चार्ज +Q है तो फोर्स होगा +QE। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन है पर चार्ज पार्टिकल इस फील्ड लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी जरूरी नहीं होता कि जिस डायरेक्शन में ट्रेजेक्ट्री उसी डायरेक्शन में फोर्स हो। आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री अलग होती है और उस पर फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो इन दिस सिचुएशन द फील्ड लाइन इज नॉट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल डेफिनेशन दैट the field lines are the trajectory of unit positive test charge.